Good morning, everyone. Welcome back to the Radical Summit 2025, day two and and we have now with us a very interesting perspective to be presented, which I think all of us need to understand how to manage our stress from the yogic perspective. And to do that, we have with us Acharya Sri Birju Maharaj. Welcome, Acharya ji. And you know, who is he? Who is Acharya Birju Maharaj? He is a yoga mentor with a legacy of yogic excellence. As a direct disciple of Swami Sri Manu Varyaraj Maharaj, he's inherited a rich tradition of yoga from his family of renowned yogis. Over 37 years of experience as a yoga teacher and a consultant therapist, Acharya Sri Birju Maharaj has helped countless individuals overcome chronic diseases. His expertise spans yoga education, therapy, and research with a strong foundation in Ayurvedic medicines, medical biotechnology, and naturopathy. He's worked with top institutions including Apollo City Center, IIM, and NIT. And as a prolific author, Acharya Sri Birju Maharaj has penned 3 books on yoga, including Science of Yoga, Yognosis, Core of Lore. He's received the Best Yoga Therapist Award from the Gujarat government in 2004. Currently, he is the founder of IAYT, which is the India Foundation and Yoga Vedic Village. With a goal to promote yoga globally, Acharya Sri Birju Maharaj is truly a yoga ambassador. So today, he will help us understand stress management from the yogic perspective. Welcome, Acharya ji. Over to you. You're muted. Okay, 1 minute. Sorry about that. Thank you very much, Aarti ji. That was a great introduction of mine, and I must congratulate the Radical team for organizing such a summit, such a wonderful summit, right? And this is congratulations to your team, Atman ji, personally. I'm really pleased to see that. See, this type of summits are rare, right? This is the rarest rare summit because this is for the benefit of the society, Absolutely. right? Yes. So yeah, you gave me the subject how to solve your stress through yoga, right? Yeah. So I'll be talking on that. Uh, I think you all of you know what is stress, right? Huh? It is omnipresent, is it? Stress is omnipresent for all. Yes, we can see that. Stress can make you or stress can break you. This is the word I always say, right? A stress can make you or a stress can break you. स्ट्रेस में हमें ये देखना है कि हम इसको कैसे परसीव करते हैं, हाउ वी परसीव स्ट्रेस, राइट? स्ट्रेस को परसीव करना ही स्ट्रेस को हैंडल करना है. हाउ वी परसीव इट. योग का पर्सपेक्टिव क्या है? योग कहता है कि इट इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन, एंड योर परसेप्शन इज फ्रॉम योर संस्कार, चित्त संस्कार. What you perceive, that your chit allows you to perceive or directs you to perceive. So now, yoga chitta vritti nirodha. Chit, always want you to perceive the things which are not in your control. But it doesn't allow you to perceive the things which are in your control. Your Atma is in your control.
You are in control of your Atma. So realize the Atma. To perceive the things in a proper way, you have to realize Atma. How many of you know about Atma? Atma is omniscient, omnipresent, right? Do you agree? Anyone with the video on? Okay, fine. That's it. So Atma is omniscient, omnipresent, and we have to realize that Atma to perceive the things as they are, right? Actually, we don't perceive the things as they are because of many obstacles in their perceptual path. There are many obstacles. There are 9 obstacles, which yoga says. Maharishi Patanjali says there are 9 obstacles which hurdles our perception. What are those? Vyadhi, Styan, Sanshaya, Alasya, Pramada, Avirati, Alabdhumikatva, Pranti Darshan, Anavasthitatva. Right? These are the 9 hurdles which prevents us to perceive the things as they are. Right? And we need to perceive the things as they are because reality is not cannot be avoided. Ramji and Krishnaji, Krishna Bhagavan, both had stress. How much stress they had? Tremendous stress, right? One cannot bear that stress. Krishnaji was born in the jail, right? Ramji was sent to the jungle, and he has to fight with Ravan. Krishna has to fight with Kauravas, right? Adharma. So there was a constant struggle and fight, stress everywhere. I'll tell you a story of Ramji later on, but let me get to the point that how yoga can make you or break you. Perception can make you or break you, and how yoga can help you to make the things, right? Okay, so first of all, how perception can make you. Ramji perceived this event, this curse, as a bliss, right? So he took it as a bliss. Isn't it? So that was a positive aspect Ramji perceived in the curse, right? In negativity. So he accepted, and acceptance is the pathway to adaptation. Once you accept the things, you adapt the things. And once you adapt the things, you master that. Am I going a little fast? I'm sorry, I'll see. Okay, fine. So, okay, fine. So now the stress of Ramji, we'll start with the stress of Ramji. At the age of 16 or something, he was cursed with the, yes. So he was sent to jungle, right? There was a event of great stress, but he accepted the thing and get adapted to that. So he can conquer the fear, he can conquer the phobias, he can conquer the negativities, he can conquer Ravana, right? So that was the making of Rama. What was the making of Rama? That event, that curse. So many a times we perceive the stress as negative thing. We just have to perceive the things are as they are, and they are positive. See, positively we have to perceive that, right? So how to perceive positively? To remove the antarayas. 9 antarayas we have to remove.
Yet, through yoga, yoga help us to remove 9 antrayas. Okay. Vyadhis, Dhyan, Sanshay is this. These are the antrayas we have to remove. तो योगांग अष्टांग योग के द्वारा हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं, ये पूरा पतंजलि योग सूत्र के अंदर पूरा वर्णन किया गया है. कैसे हम अपने प्रोग्राम को रिसेट कर सकते हैं. प्रोग्राम, लाइफ इज अ प्रोग्राम. इट इज अ प्रोग्राम्ड जर्नी, राइट? Life is a programmed journey. We have that capability to change the program, but generally we don't allow anyone to change our program, even when not yoga, right? We don't allow even yoga to change our program. See, that is where transformation lies. We have capacity to transform ourselves, but we never focus on that, right? We have to focus on that we have inherent capacity to transform ourselves through yogic practices, yogic life, right? Yogic lifestyle management. Once you manage your life in yoga way, you can easily manage the stress. Stress is nothing. Stress is omnipresent. Parinam tap sanskara dukhe gunavrutti virodhat cha dukkhamev sarvam vivekina. See, suffering is always there. Anxiety, stress is always there, right? But we have to find out the upregulatory perception. There are two types of perceptions, right? One is upregulatory, one is downregulatory, right? Ravan went into the downregulatory perception and Ram went into the upregulatory perception. That is the only difference between Ram and Ravan. Ram always accepted the things and adapted to the situations and be with himself, right? And Ravan, he gone to down regulatory perceptions that Rama is his enemy, right? He want Sita to be his colleague, right? Spouse. So this was the negative perception and down regulatory perception. Okay. So yoga says that you can cultivate your perception through viveka. See, vivek buddhi, we all have the vivek buddhi, but we rarely use it. We know what is upregulatory, what is downregulatory, what will lift up us up, or what will bring us down. Yes? Yes. Okay. Thank you. So now Ramji was in stress, right? Who helped him? Hanumanji. Who is Hanumanji? Hanumanji is Prana. Prana, right? Who united Ram with Shakti, Sita. Reunion. See what yoga does. Through pranayam, he introduces you, you get united, reunite you with your own energy. Sitaji was Ramji's own energy. So Hanumanji as a pran united Ramji with Sitaji and always be with him. Right? No matter whether that was a question of fight or flight, right? In fight, Hanumanji was there with Ram. And in flight, when the Lakshman got injured, right? So he took the flight and get the Himalaya, some of the part of Himalaya there in Lanka. So it is a fight or flight response. And stress gives always fight and flight response, where Hanumanji is always present with you. You know, your Atma is your Ram and Hanumanji is your Pran. You have to understand this. Ram always is backed by Hanumanji. Atma is always backed by Prana.
But we never utilize this prana for our upregulatory perception, upregulatory life. You know, upregulation? Upregulation is the effort or the act of getting liberated from all the bondages. We are bound with many things. We are bound with the body, Annamaya Kosha, right? We are bound with the Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vigyanmaya Kosha, and lastly, Anandmaya Kosha, right? We are bound. We have to transcend these bondages. Once we transcend these bondages, we can live in the blissful state of mind, this blissful state of existence. And what is bliss? No bondages, right? No struggles, no stress. Stress is created by bondages, right? And these bondages are our perceptual bondages only. These bondages are not real bondages, right? Ram would have denied that I'll not go to the jungle. I'll not go jungle, right? Ram would have denied, but he never denied because he accepted, yes, and bliss is Paramatma. That Anandamaya Kosha, the deepest causal body, the deepest, the causal body, right? And Paramatma is Ishwar. Ishwar. Ish मतलब इच्छा, desire, वर मतलब देने वाला. Whatever you desire will be given to you through your Ishwar, right? Your Ishwar will give you. So Paramatma is Ishwar, Ishwar is bliss, bliss is Anandmaya, right? This is where you have to understand. Yoga is very easy to perceive if you are really keen to understand yoga. And it is very much difficult if you are not so keen to understand yoga. Yoga is the operating system of life that regulates the chitta vrittis, that regulates every activity you do, all the action, yoga karmas kaushalam, right? All the act you do is guided by yoga. Yoga allows the chit to perceive particular things in controlled manner. So that is why yoga chitta vritti nirodha, right? Now, let me tell you one thing more, right? What is Ayodhya? Ramji came back Ayodhya after winning. Ramji came back to Ayodhya. What is Ayodhya? Ayodhya is a state of resilience, right? Ayodhya, Shabda. You know, you take the Shabda. The state of resilience. And this is what we need. Struggle is there in life. In the journey of life, struggle will be always will be there. But what we have to do is, we have to get back to our own state of resilience. Ramji went back to his state of resilience, where he ruled as a king. So you want to rule as a king in your own state of resilience, you have to take the stress in positive manner. Right? See, resilience is always there. You are a state of bliss. You are in resilient state, but that get disturbed through wrong perceptions, wrong adaptations, down regulatory actions, right? That we decide. We have the choice to go towards the up regulation or down regulations.
Do we have choice? Yes. Yes, we have choice, right? We have choice to up-regulate or down-regulate our life, right? You know that what is down-regulation? Someone says doing pap and punya. This pap and punya is the understanding of what is right and what is wrong. Just an understanding. That is not that doesn't give you any path, right? Understanding doesn't give you any path. Path is given by yoga, right? You have to cultivate vivek through yoga. Yoga that gives you that vivek. How does it give you vivek? How will you cultivate vivek? You assume the story of Ram. राम जी का स्टोरी आप एज्यूम करो, आंखें बंद करके ध्यान करो, अगर मैं राम होता या होती, राइट, तो मैं कैसे सब चीज को परसीव करती, तब मेरा एक्शन क्या होता, राइट? उन्होंने संधि प्रस्ताव भी रखा। कोई इंसान इतनी क्रुशियल स्थिति में, इतनी खराब स्थिति में संधि प्रस्ताव रखेंगे? उन्होंने युद्ध को अवॉइड किया, लोगों की जान हानि को अवॉइड किया, राइट? रावण को समझाया, विभीषण को बोला कि रावण को समझाए, राइट, बट नहीं समझा। तो आप इसको किस तरह से परसीव करते हैं? कितना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल, इसमें भी कितना विवेक, ये विवेक है, दिस इज विवेक, राइट? इतना स्ट्रगल में कितना विवेक रख के उन्होंने काम किया। उन्होंने सुग्रीव को अपना हक दिलाया, राइट, और मैसेज भी दिया रावण को कि मैं अगर बाली को मार सकता हूं, तो बाली जिसने तुझे 1 साल तक बगल में दबा के रखा था, अगर मैं उसको मार सकता हूं तो तेरी क्या विसात है। वो एक मैसेज दिया था। ये भी एक विवेक है। आप दुश्मन को बताओ कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, फिर भी वो लड़ना चाहे तो ठीक है भाई, अब तेरी मर्जी, राइट? तो विवेक हमेशा, ये आप कृष्ण और राम जी के पात्र में आप विवेक देख सकते हैं। हर जगह पर विवेक, राइट, हर एक स्थिति में विवेक, ये योग देता है। अयम तु परमो धर्म यत योगेन आत्मदर्शनम। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, हमारा एक परम धर्म है कि हम योग के द्वारा अपने आत्मा का दर्शन करें, आत्मा को परसीव करें, क्योंकि आत्मा प्योर है, ओमनिशिएंट है, राइट? अगर उसको हम परसीव करेंगे तो हम भी ओमनिशिएंट बनेंगे, हमारे अंदर भी ये विवेक आएगा। शक्तिशाली जो है ना, उसके अंदर विवेक होता है, जो अशक्त होता है ना, उसके अंदर विवेक नहीं होता है, यू नो। तो योग कहता है शक्तिशाली बनो, है ना? अपने प्राणों के द्वारा, जो आपकी प्राण शक्ति, आपकी शक्ति खुद की शक्ति है, वो प्राण के द्वारा सिंचित करो, अंदर प्राप्त करो। हनुमान जी को आप हमेशा साथ रखो, प्राणों को हमेशा साथ रखो, जिससे आपकी शक्ति कभी आपसे जुदा ना हो, राइट, और आप शक्ति के साथ रहो। अब थोड़ा इसको थोड़ा और भी डिटेल में ले जाते हैं, राइट? तो योगिक प्रैक्टिसेस कैसे इसमें हेल्प करते हैं, कैसे हम योग करें जिससे हमें ये अच्छा परसेप्शन प्राप्त हो, अपरेगुलेटरी परसेप्शन प्राप्त हो। तो जब हम आसन करते हैं तब हम अन्नमय कोश को शांत करते हैं, सी उसकी डिमांड को शांत करते हैं, उसके अंदर के स्ट्रेस को शांत करते हैं। फिजिकल स्ट्रेस रहता है ना हमें, फिजिकल स्ट्रेस रहता है, यस। Yes. तो फिजिकल स्ट्रेस को हमें दूर करना है तो हमें आसन करना है। अगर हमें शक्ति को प्राप्त करना है आसन के द्वारा, तो हमें उसके साथ प्राणायाम करना है। अब शक्ति प्राप्त हुई
शरीर स्ट्रेस से शांत हुआ तो क्या होगा, मन भी शांत होगा, फोकस्ड होगा, और हम प्रत्याहार कर पाएंगे, मनोमय कोश को कंट्रोल कर पाएंगे, स्थिर कर पाएंगे। देन अगर हम धारणा ध्यान करते हैं तो हम विज्ञानमय कोश को स्थिर कर पाते हैं और आनंदमय कोश में जा सकते हैं, समाधि प्राप्त कर सकते हैं। आनंदमय कोश में जाना है तो हमें ये स्टेप बाय स्टेप हर एक लेवल के कॉन्शियसनेस को ट्रांसेंड करना पड़ेगा। हमारी पहली कॉन्शियसनेस क्या है, शरीर, बेसिक कॉन्शियसनेस। हमारा शरीर सबसे ज्यादा हमारा हर्डल है, बंधन है, और वही हमारा इंस्ट्रूमेंट भी है। तो सबसे पहले स्वस्थ करो शरीर को, तो आसन करके उसके साथ प्राणायाम को जोड़ो तो शरीर और शक्ति दोनों साथ में जुड़ेंगे और शरीर शांत होगा, रिलैक्स होगा, रिजॉइन होगा, राइट, रिप्रोग्राम होगा। सी, पहले मैंने बताया कि हमारी लाइफ एक प्रोग्राम्ड जर्नी है। इस जर्नी को हम हमारे अनुसार बदल सकते हैं। जैसे एक ट्रेन है जो ड्राइवर चला के ले जा रहे हैं और हम बैठे हैं, और दूसरी एक ट्रेन है जो हमें दे दी गई, आप चलाओ। तो कौन सी ट्रेन में आप जाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली जहां आपको एक्सपीरियंस ड्राइवर है, पाथदर्शक है, जो गाइड है, उसके पास सब नॉलेज है, तो हम क्या करेंगे, हमारे आत्मा को सब नॉलेज है तो हम आत्मा को सौंप देंगे हमारा जीवन, राइट, जो परमात्मा से गाइडेड है। तो हमने योग के द्वारा क्या सीखा, हम अपने आत्मा को ईश्वर के आधार पर छोड़ देंगे, और ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंतरायों को दूर करना पड़ेगा। अंतरायों को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा, राइट। तो ये अशुद्धियां दूर कैसे होगी, तो आसन प्राणायाम करने से ये अंतराय दूर होंगे और हमें राइट चीज परसीव होगी, परफेक्ट चीज परसीव होगी, और हम तभी आप रेगुलेशन में जा सकते हैं, विवेक तभी कल्टीवेट हो सकता है, तभी हमारा चॉइस राइट हो सकता है। यू ऑलवेज हैव चॉइस। हमारे लाइफ में हमेशा हमारे सामने चॉइस रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं ये मैंने पसंद ये चॉइस नहीं ली होती तो अच्छा होता, राइट, ऐसा करते हैं ना, राइट, कि हमने कोई कोई चॉइस ले ली, गलत हो गई, तो हम पछताते हैं कि ये चॉइस मेरी गलत हो गई। ये गलत क्यों हुई? गलत इसलिए हुई कि हम लोभ मोह क्रोध मद मत्सर काम इसमें पड़े हैं, हम माया में पड़े हैं, और इसी के चश्मे से हम देखते हैं, राइट। यही हमारे आंखों के ऊपर एक लेयर बना के रखता है परसेप्शन के लिए। अगर भय से कुछ भी चीज देखेंगे तो क्या होगा, अगर राम जी रावण से भय खा गए होते तो क्या होता, तो कभी जीतते ही नहीं, पहले ही हार जाते। तो भय से जीतना है हमें, डर से जीतना है, पहले तो भय से जीतो। उन्होंने खुद रावण को बुलाया था अपनी अपनी प्रार्थना करने के लिए, अपनी पूजा करने के लिए, हवन करने के लिए, राइट। वो बता रहे थे कि मैं तुझसे डरता नहीं हूं, राइट। तो फियर से पहले तो फियर से भय से दूर हो जाओ। तो योग क्या करेगा, आपको सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल डर कि मुझे कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा डर है ये कि मुझे कुछ हो जाएगा। मेरे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन चीज जो देखी है वो भय है। आई डोंट नो मुझे क्या हो जाएगा, पर सर मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। क्यों?
डोंट यू हैव फेथ इन योरसेल्फ? आप अपने शरीर को नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन वी हैव lost our ability to unite it with his Shakti, and Shakti can heal you. Right? शिव जी अगर किसी को कर्ज करते हैं तो कौन बचाता है? शक्ति, पार्वती जी। राइट? अगर किसी के ऊपर शिव जी अगर कर्ज करते हैं, किसी कोई गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं और उसको भस्म कर देते हैं, तो उसको कौन बचाता है? पार्वती जी। राइट? शक्ति ही आपको बचाती है, पर हम शक्ति से अलग रहते हैं। शक्ति जैसे हमारा अंग है ही नहीं। यस, एंड जब शिव शक्ति यूनाइटेड नहीं रहते हैं, एक नहीं रहते हैं, तब जाके सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। आपके अंदर ईश्वर ने आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, अगर वो ठीक से काम नहीं करता है तो आपके सेलुलर फंक्शन सब खराब हो जाएंगे, पूरा एनर्जी साइकिल खराब हो जाएगा, आपके सेल के सभी ऑर्गेनल्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, खराब हो जाएगा, सेल प्रोग्राम ही खराब हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी शक्ति है, उसको अगर आपने अपरेगुलेट कर दिया, अच्छा कर दिया, तो फिर आपके रोग अपने आप ही निर्मूल हो जाएंगे। और प्राणायाम आपको आपकी शक्ति के साथ में एक करता है, जोड़ता है। और मन तो उसका गुलाम है। अगर आपने प्राणायाम करके अपने चित्त को राइट परसीव करा लिया, राइट चीज परसीव करा ली, शक्ति को प्राप्त करके, राइट, अगर आपने चित्त को शांत कर लिया तो यू हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग, यू हैव कॉन्कर्ड योर माइंड। माइंड एक स्लेव है, हम कहते हैं ना मन मरकट है, राइट, मन मरकट है लेकिन आपका गुलाम है। अब वो आप उसको कैसे आप हैंडल करते हो वो आपके ऊपर है, राइट। मन हमेशा आपको इधर उधर भटकाएगा। योग कहता है फोकस करो, ध्यान करो, राइट। अगर आपने फोकस कर लिया, मन को एक जगह पर स्थिर कर लिया, तो फिर आपकी शक्ति आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी और आपको अप रेगुलेशन में ले जाएगी। और फिर आप जाएंगे विज्ञानमय कोश में, जहां पर आपके सभी हॉर्मोन्स आपकी इच्छा के अनुसार, हॉर्मोन आई स्टिमुलेट, यू नो, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी जरूरत के अनुसार हार्मोन का सीक्रेट होना जरूरी है। और वो कब होगा? विज्ञानमय कोश जब आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। बायोकेमिकल बॉडी, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ बॉडी, यू नो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। सो आप ये आसन प्राणायाम करके ट्रांसेंड किया आपने मनोमय कोश में, प्रत्याहार करके आपने मनोमय कोश को ट्रांसेंड किया, और धारणा करके आपने विज्ञानमय कोश को ट्रांसेंड किया, और ध्यान से आपने अन्नमय कोश में प्रवेश किया, सॉरी आनंदमय कोश में, राइट। अब एक एक लेवल को ट्रांसेंड करना है हमें, इसीलिए महर्षि पतंजलि ने हमें ये प्रैक्टिसेस दी है, अष्टांग योग दिया कि कैसे इस कॉन्शियसनेस को ट्रांसेंड कर सकते हैं। अन्नमय कोश, हमें मेरे 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 पेट में दर्द है तो क्या मुझसे ध्यान होगा? राइट। मुझे कट लग गया है तो मैं प्राणायाम कर पाऊंगा? मेरे खून बह रहा है, राइट, पेन कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्राणायाम भी नहीं कर पाऊंगा, राइट, राइट। तो अभी हम लोग एक एक लेवल को ट्रांसेंड करना सीखेंगे, कैसे करना है मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा के जाऊंगा यहाँ पर, राइट। सबसे पहले तो आप सब लोग स्थिर बैठिए और ये देखिए कि शरीर में कहाँ दर्द है। आंखें बंद करिए, सीधे बैठिए और देखिए शरीर में दर्द कहाँ है।
बिल्कुल शांति से स्थिर बैठिए, कुछ भी कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, शरीर को बिल्कुल शिथिल रख दीजिए। देखिए, कहीं कहीं पेन है? People, you can raise your hands if you have anything, and you can unmute and speak. Agar- Ah, uh, yes. you can. Uh, uh, that will come. That will, after some experience, they will come. Okay, now focus on your breath. Take your breath to the site which there is pain. जहाँ पेन है वहां पर प्राणों को ले जाओ। और ये प्राण मेरे पेन को दूर कर रहे हैं, ये विजुलाइज करो। पांच ही मिनट के ध्यान से आप अपने पांचों लेवल को ट्रांसलेट कर सकते हो। क्रॉस टू सटल, बहुत डीप जाना है। अंदर बहुत डीप आनंद पड़ा है। ये पेन सुपरफिशियल है, ये ऊपर ऊपर है सब। अंदर ब्लीस है, अंदर आनंद है, अंदर जॉय है। इंद्रियों का इंद्रियों की वासना सब शांत हो गई। अब हम विज्ञानमय कोश में पहुंचे। अब अपने हार्मोन्स को ऑब्जर्व करो। पेन ट्रैवल भी करता है, पर हमें पेन को कंट्रोल करना है। पेन को कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? उसको शरीर के लेवल पर छोड़ दो। पेन को शरीर के लेवल पर छोड़ के प्राण के साथ एक हो जाओ। शरीर है तो पेन है और रहेगा, उसको भूलो। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चार क्वालिटीज योगी के होते हैं, राइट? अगर हमारे प्राण हमें साथ देते हैं, अगर हमें मैत्री करते हैं तो हमें साथ देते हैं, तो प्राण के साथ मैत्री करो। ये मैत्री आपको करुणा, मुदिता, उपेक्षा के गुण देंगे। स्लोली ओपन योर आईज। देखिए, मैंने ये 5 मिनट का आपको एक छोटा सा सेशन दिया। ये आपका एक रूटीन हो जाना चाहिए, लाइफस्टाइल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने हमें हर बार आंख बंद करने की जरूरत पड़े, हमें हर बार ध्यान करने की जरूरत पड़े। हम ध्यान में ही रहे, ऐसा ना हो सकता है। हो सकता है, यस, हम हमेशा ध्यान में रह सकते हैं।
24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं। ध्यान से खाना, ध्यान से सोना, ध्यान से सब काम करना। ये मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि बेटा सब कुछ ध्यान से करो, सब में ध्यान लगाओ। राइट, सब कुछ ध्यान है। अगर ध्यान से करोगे तो विजय आपकी है, अगर बेध्यान हो जाओगे तो आप पराजित हो जाओगे। राइट, ये छोटी सी बात हम सब जानते हैं, लेकिन इसको कभी प्रैक्टिकली अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देते हैं, समझ में नहीं लाते हैं इसको। छोटी छोटी बातें, जैसे आत्मा, आत्मा में मुझे लाने वाला, मुझे इस दुनिया में लाने वाला। राइट, माता, आप आत्मा और माता देखो। राइट, वो भी मुझे दुनिया में लाने वाली है। ये बातें, हम छोटी छोटी बातें अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे शास्त्रों ने इतना गहन ज्ञान दिया है, इतना सटल ज्ञान दिया है कि इसके अगर रूट में चले जाएंगे तो आप समझेंगे कि हमारे पास रिसेटिंग और रिप्रोग्रामिंग की कितनी कैपेसिटी है। मेरी एक बुक है जो अभी मैंने पतंजलि योग सूत्र पे लिखी है, पतंजलि योग सूत्र, अ कंप्लीट मैन्युअल ऑफ ऑटोजीन थेरेपी, यौगिक आत्मचिकित्सा विज्ञान। इसका हिंदी संस्करण है यौगिक आत्मचिकित्सा विज्ञान। आप अपने आप से ही अंदर से ठीक हो सकते हो। राइट, सेल्फ हीलिंग। राइट, आप सेल्फ हीलिंग को अगर प्रमोट करोगे तो आप योगमय हो जाओगे, और योगमय हो जाओगे तो सेल्फ हीलिंग अपने आप प्रमोट हो जाएगा। हाँ, वी विल कम टू द सेशन। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। उसके बाद में आपके सब आंसर करूंगा, मैं आपके जितने क्वेश्चन आंसर करूंगा। सी, अभी नो पॉइंट है, आप लिख के रख लीजिए क्वेश्चंस। देयर इज नो पॉइंट के बीच में हम क्वेश्चन आंसर करें। राइट, अब छोटा सा स्ट्रेस के ऊपर मुझे जाना है, तो इसलिए थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस जर्नी को हमें ब्लिसफुल करना है, आनंदमय करना है लाइफ की इस जर्नी को। तो पहले तो हमें, सबसे पहले तो हमें शरीर को सुखाकारी में लाना है, क्योंकि शरीर सुख में होगा तो ही वो प्राणायाम करेगा, और प्राणायाम करेगा तो ही मन शांत होगा, मन शांत होगा तो ही हार्मोन्स ठीक होंगे, विज्ञान में कोश ठीक होगा, और अगर हार्मोन्स ठीक होंगे तभी जाके आप ब्लिसफुल कंडीशन में, आनंदमय कोश में जाओगे। दिस इज द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइफ, द जर्नी ऑफ लाइफ। अगर यहाँ से बॉम्बे जाते हैं, अहमदाबाद से बॉम्बे जाते हैं, तो पहले नडियाद आएगा, फिर आनंद आएगा, फिर बड़ौदा आएगा, फिर सूरत आएगा, फिर बोरीवली आएगा, फिर सेंट्रल आएगा, बॉम्बे सेंट्रल। राइट, सो दिस, ये पड़ाव है जीवन के, जो जर्नी के पड़ाव है। आपने आसन को, शरीर को कॉन्कर कर लिया, फिर आपके पास आएगा आपके प्राण, प्राण पे विजय प्राप्त कर लिया, फिर आएंगे आपके मन, मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, फिर आएगा आपका विज्ञानमय शरीर, मतलब आपके हार्मोन्स, बायोकेमिस्ट्री, और उसको अगर विजय प्राप्त कर लिया तो आएगा आपका आत्मा, ईश्वर, जो इच्छित वरदान देने वाला है। वहां पहुंच जाओगे आप, उस प्लेन पे पहुंच जाओगे जहां ईश्वर आपके, हमेशा आपके साथ है, आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। अगर ईश्वर आपके साथ है और आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं, तो विल यू बी इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस और नॉट? राइट, अगर ईश्वर मेरे साथ हमेशा है तो यू विल बी ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। तो ऐसा क्यों नहीं मानते हम कि ईश्वर हमारे साथ है? क्योंकि हमें मिसगाइड किया गया है, ईश्वर कहीं और है। ईश्वर कहीं और नहीं है, ईश्वर विदिन है, हमारे अंदर है। उसको जागृत करना है योग के द्वारा, उसके पास पहुंचना है, उसको हमारे हमारे साथ एक करना है, ब्लिसफुल स्टेट में आना है। राइट, जहां ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ईश्वर का साक्षात्कार हमेशा किया होगा। जब जरूरत होती है ईश्वर कुछ ना कुछ हेल्प कर लेते हैं।
करते हैं? हाँ, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ये मैंने बताया, मैंने 3 किताबें लिखी है, तो मैं बताऊंगा। पर ईश्वर आपके हमेशा साथ है, वो कहीं नहीं जाते हैं। जब जब आप उसको रियलाइज करते हैं ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, तब वो साक्षात्कार हो जाते हैं। और यही साक्षात्कार हमें 24 घंटे रखना है, तभी हम स्ट्रेस से मुक्त हो पाएंगे। जिसके साथ ईश्वर है उसको क्या स्ट्रेस, राइट? कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया? सर्वधर्मान पे परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। अगर तू सक्सेस चाहता है, स्ट्रेस से मुक्ति चाहता है, विषाद से मुक्ति चाहता है, तो सब कुछ छोड़ दे। तू जो जो समझता है वो भी छोड़ दे। तो जिसको धर्म समझता है वो भी छोड़ दे, क्योंकि शायद धर्म तू बराबर समझता नहीं है, उसको भी छोड़ दे। फक्त ईश्वर की शरण में आ जा। अंदर जो ईश्वर मैं बैठा हूं, मेरी शरण में आ जा। और उसकी शरण में जाने के लिए तुझे योगी, अयम तो योगी भव, तुझे योगी बनना है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग ही एक माध्यम है। चाहे आप भक्ति योग कर लो, चाहे आप कर्म योग कर लो, चाहे आप ज्ञान योग कर लो, राइट? चाहे अष्टांग योग कर लो, आपको पहुंचना है ईश्वर के पास। ईश्वर को से आत्म साक्षात्कार करना है। यस, राइट। तो ईश्वर का साक्षात्कार हमेशा 24 घंटे अगर रहेगा तो स्ट्रेस रहेगा? कभी नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर तो ओमनीपोटेंट है, टोटीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट तो है, ईश्वर तो टोटीपोटेंट है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और वो आपके आपके बाल भी बांका नहीं होने देंगे, राइट? ईश्वर विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, विल विल ऑलवेज कंट्रोल यू। इसीलिए मैंने पहले श्लोक बताया, अयम तू परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम। हमारा ये कि हम योग के द्वारा अपने आत्मा का साक्षात्कार करें, जो ईश्वर आत्मा के द्वारा हमारे शरीर में मैनिफेस्ट करते हैं, राइट? जब ये रूट पता चल गया, जब आपके रूह अंदर के गुरु आपको मिल गए, फिर आपको क्या चिंता, राइट? और आपके साथ प्राण शक्ति भी है। कभी आपको प्राण छोड़ के गए हैं? मुझे बताओ। और जाएंगे तो जिंदा रहेंगे हम? प्राण छोड़ के नहीं जाते हैं जब तक हम जिंदा हैं, राइट? जब तक राम जी जिंदा है, हनुमान जी उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, राइट? तो प्राण आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके पास 7 प्राण है तो आप फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। आप लंका में जाके रावण से भी युद्ध कर सकते हैं, उनको भी हरा सकते हैं, राइट? तो ईश्वर प्रणिधानात् द्वा, अगर आपको स्ट्रेस से मुक्त होना है तो ईश्वर का प्रणिधान करो। पतंजलि मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधानात् द्वा। अगर आप सब कुछ में आप हार चुके हो, कोई भी चीज आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि अब वो टॉलरेबल लिमिट से भी बाहर निकल गया है, वो जो हैंडल नहीं हो रहा है, तो ईश्वर प्रणिधानात् द्वा, छोड़ दो ईश्वर पे। ये ईश्वर पे छोड़ना ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक योगी ही जीवन को ईश्वर के अधीन छोड़ सकता है। सबके हाथ में नहीं है ईश्वर के अधीन छोड़ना। नहीं, भक्ति योगी जो लोग हैं वो बहुत इजीली ईश्वर को अधीन हो जाते हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। पर यहाँ राजयोगी के लिए डिफिकल्ट होता है, राइट? ईश्वर प्रणिधानात् द्वा, ये बहुत जबरदस्त एक ही सेंटेंस है, ईश्वर प्रणिधानात् द्वा। ये ये महर्षि पतंजलि ने ये एक ही सेंटेंस देके बहुत बड़ा कमाल का बात कर दिया है।
जैसे कृष्ण भगवान ने बोला ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज। तो ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने बताया है कि ईश्वर प्रणिधान द्वा, कुछ भी है सब छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, ईश्वर को सौंप दो, अपने अंदर जो ईश्वर बैठे हैं उसको सौंप दो, स्ट्रेस अपने आप भाग जाएगा। कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस परसेप्शन है। अगर आप देखते हो कि डॉक्टर आपको स्टिच ले रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है, राइट, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है, पर वो क्या आपको मार रहे हैं या बचा रहे हैं? बचा रहे हैं, राइट। तो स्ट्रेस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। स्ट्रेस अगर जीवन में आता है तो भी वो पॉजिटिव होता है। वो आपको अप रेगुलेशन में जाने के लिए सिग्नल देता है। आइदर इट कैन बी अ रेड सिग्नल और ऑरेंज सिग्नल और ग्रीन सिग्नल। खाली आपको सिग्नल को समझना है कि कौन सा सिग्नल है। इज इट अ रेड सिग्नल, यहाँ स्टॉप हो जाओ। इज इट अ ऑरेंज सिग्नल, दैट यू बी केयरफुल, और इज अ ग्रीन सिग्नल, गो अहेड, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। 3 सिग्नल के ऊपर पूरा जिंदगी हम जी सकते हैं। अगर ईश्वर ने सिग्नल, कौन सा सिग्नल दिया है, वो ईश्वर का सिग्नल हमने समझ लिया, राइट। अगर वो ग्रीन सिग्नल देते हैं तो दौड़ो, दौड़ो, एकदम फास्ट दौड़ो, राइट। अगर वो रेड सिग्नल देते हैं तो रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। और अगर वो ऑरेंज सिग्नल देते हैं तो बी केयरफुल, गो अहेड बट विथ केयर, केयरफुली आगे जाओ, राइट। हमें योग के द्वारा ये विवेक प्राप्त करना है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। आत्मा ईश्वर का अंश है और ईश्वर ही ओमनीपोटेंट, टोटीपोटेंट है। उनकी पोटेंसी को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, उनके पास जाना ही हमारा लक्ष्य है, उनको ही सब सौंप देना जीवन, ये हमारा लक्ष्य है। जब जीवन ईश्वर के अधीन हो जाएगा तब प्राण उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, और प्राण कभी नहीं छोड़ेंगे तो आप लंबा जियोगे, स्वस्थ जियोगे, आनंदमय जियोगे। स्ट्रेस के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, समझी होगी, लेकिन मैंने ये इसको क्यों मैंने राम जी की स्टोरी के साथ जोड़कर बताया, क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि स्ट्रेस इज ओमनी प्रेजेंट फॉर इवन फॉर गॉड ऑल्सो, राइट। एक ह्यूमन फॉर्म में है ना गॉड, तो उनके लिए स्ट्रेस इज ओमनी प्रेजेंट, सब जगह पर स्ट्रेस है। वेदर उनको वशिष्ठ मुनि के वहां जाके योग का ज्ञान प्राप्त करना है, या विवेक प्राप्त करके अपने जीवन को जीना है, या फिर शक्ति को प्राप्त करके मतलब दैत्यों को, राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त करना है। ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेस तो है, लेकिन अगर उसको परसीव करने के लिए हमारे पास अच्छा परसेप्शन है कि ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है हमारे जीवन की जर्नी को चेंज करने का, हमारे जीवन की जर्नी को अपने हाथ में लेने का मौका दिया है, इस मौके का पूरा उपयोग करो, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करो, अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, इविल शक्ति है, उसको दूर करो, राइट। और अपने रिजिलियंस स्टेट में वापस आओ। रिजिलियंस स्टेट मतलब अयोध्या, उसमें हम वापस आते हैं, राइट। सॉरी मैं बोल बोल कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे 2-3 मिनट में, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, आई नो। एक एक बात मैं हमेशा बताना चाहता हूँ कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा मेरा एक बहुत ही फेवरेट चीज है जो महर्षि पतंजलि ने हमें बताया है कि हम अगर ये 4 क्वालिटीज अपने जीवन में ला देते हैं तो ईश्वर प्रणिधान अपने आप हो जाएगा। ईश्वर ने हमें विवेक प्राप्त करने के लिए क्या दिया है? विवेक प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार का लक्षण दिया है। हमारे अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम मैत्री भी कर सकते हैं
राइट। किसी के लिए करुणा भी रख सकते हैं हम, वननेस भी रख सकते हैं, मुदिता भी रख सकते हैं, और हम उपेक्षा भी कर सकते हैं। सो हमारे पास ये 4 कंट्रोल हैं। हमारे चित्त को कंट्रोल करने के लिए 4 वे हैं। अगर अगर कोई भी चीज अनकंट्रोलेबल है तो फिर उसकी उपेक्षा करो, राइट। उपेक्षा करना भी एक क्वालिटी है। बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है जो हमें स्ट्रेस देती है, तो उसकी उपेक्षा करो। स्ट्रेस तभी दे सकती है जो अगर आपने उसको परसीव किया, उसने आपने उसको ले लिया। अगर उपेक्षा किया तो स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस लगेगा ही नहीं, राइट। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, उस समय आपने सांसों पर ध्यान ले लिया, अपने अंदर ध्यान ले लिया, तो ट्रैफिक आपको आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, राइट। तो उसकी उपेक्षा करना है ठीक है, ट्रैफिक है तो होने दो, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। ट्रैफिक मेरे हाथ में तो है नहीं। अगर धूप ज्यादा हो गई है तो धूप तो मेरे हाथ में है नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं छाता खोल सकती हूँ या खोल सकता हूँ। यस, मैत्री फ्रेंडशिप, करुणा कंपैशन, मुदिता जॉय, उपेक्षा डिटैचमेंट, ये 4 क्वालिटीज जो आपने लिखे, बहुत बहुत अच्छा। आपकी समझ बहुत ज़्यादा है, आपने रेडिकल में बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखा है, और मैं देख रहा हूँ आप लोगों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई है। आपने शायद डीप जाके, डीप डाइव करके योग को आत्मसात किया है ये रेडिकल में। रेडिकल मतलब 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ये एक बहुत ही उम्दा शब्द है जो आप आत्मसात कर रहे हो। रेडिकल छोटा मोटा शब्द नहीं है। हम लोग माता के वुम्ब में बंधन में थे 9 महीने, राइट। बाहर आते ही रोए, कितना पेन, कितना सफरिंग, कितना स्ट्रेस लेके माता ने हमें जन्म दिया, राइट। तो स्ट्रेस के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। अगर स्ट्रेस लेके माता ने 9 महीने अपने शरीर में हमें पाला पोसा, पेन लेके, स्ट्रेस लेके हमें जन्म दिया, राइट। हम आते ही ये जमान दुनिया में रोए। ये सब बातें क्या दिखाती है कि स्ट्रेस इज ओमनी प्रेजेंट, स्ट्रेस हमेशा रहेगा। लेकिन माता, जैसे ही बच्चा आता है तो माता के मन में इतना मन भाव प्रसन्न हो जाता है, इतना संतोष शांति सुख आ जाता है, इतना ब्लिसफुल स्थिति आ जाता है, राइट। ये कब हुआ? जब उसने पॉजिटिवली स्ट्रेस लिया। माता ने बोला कि मेरे बच्चे के लिए मैं स्ट्रेस ले रही हूँ, राइट। तब हुआ ना। हर स्ट्रेस के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। वो कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो उपेक्षा करो। अदरवाइज मैत्री, करुणा, मुदिता, ये 3 क्वालिटीज तो आपके पास है ही। अगर राम जी ने, हनुमान जी या सुग्रीव से मैत्री नहीं की होती तो क्या राम जी लंका तक पहुंच पाते? सेतु बन पाता? नहीं बन पाता, राइट। सुग्रीव से मैत्री करना जरूरी है। सुग्रीव, सुग्रीव मतलब अच्छा परसेप्शन, जो अच्छा ग्रहण करता है, राइट। इससे मैत्री करो। हनुमान जो सदा चीरकाल से आपके साथ है, उससे प्रेम करो, मुदिता रखो, वननेस कल्टीवेट करो। लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य, मन का लक्ष्य, जिसके मन का लक्ष्य जो है वो भाई की सेवा है, ऐसा ध्यान करो, ऐसा लक्ष्य रखो मन का कि आप सिद्धि प्राप्त करो, आप अजय अमर हो जाओ। आपके लिए भी हनुमान जी
उड़ के जाए और संजीवनी ले आए, राइट? So I think I have crossed the limit. We shall go with the question answer session, right? Okay, so you may have questions. I'm ready to answer. Please raise your hands, all of you, whoever wants to ask questions, and then you can, open your videos and talk to Acharya ji directly. Okay? Yes, Revati. Yes. नमस्ते आचार्य जी, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सेशन। एक डाउट हमेशा से था, तो आपने आज जो बात छेड़ी तो मैं आपको पूछ रही हूँ। आपने लास्ट में बोले थे अगर सुग्रीव जी नहीं होते तो राम जी का कैसा होता था। ओके, सो राम जी का जो था मिशन इन लाइफ, इट वाज टू हैपन विद अ पर्टिकुलर थिंग, एंड सुग्रीव जी वाज अ पार्ट ऑफ दैट, सो एंड इट वाज डेस्टाइन्ड टू हैपन। सो इफ वी हैव टू इम्बाइब, अब वो हमारे लाइफ में हमको वो इम्बाइब करना है। सो लाइक हाउ डू वी गो अबाउट इट? इज अ वेरी डीप क्वेश्चन, बट दैट थिंग वाज लाइक वो मेरा इवोक आया कि ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लूं करके। यस यस, बहुत अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके मन में आना ही चाहिए था। मैंने जो बात किया वो हैपन, वो होना ही था। सुग्रीव मिलने ही थे, क्योंकि राम अपरेगुलेटेड परसेप्शन में थे। राम के पास विवेक था। अगर आपके पास विवेक है तो आपको सुग्रीव, सुग्रीव मतलब अच्छा ग्रहण करना, तो आपको प्रॉपर चीज ग्रहण करना, आपको पता चलेगा जीवन में क्या प्राप्त करना है, क्या किसको पकड़ के चलना है, किसको छोड़ के चलना है। बाली को छोड़ देना है और सुग्रीव को रखना है। तो अच्छी चीज जो सुग्रीव, जो अच्छा ग्रहण कराता है, उसको रखो साथ में। सो अपरेगुलेटरी परसेप्शन तभी बना रहेगा जब हम अच्छा अच्छा ग्रहण करेंगे। तो हमारा प्राण शक्ति हमें सुग्रीव से ही प्राप्त होती है। अच्छा अगर ग्रहण करना चाहेंगे तभी प्राण शक्ति प्राप्त होगी, तभी हनुमान जी हमें प्राप्त होंगे। सुग्रीव के ही हनुमान जी सुग्रीव के ही राज दरबार में थे, राइट? तो अगर हमें सुग्रीव को प्राप्त करके रखना है तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा अपरेगुलेटेड परसेप्शन हमें विवेक देता है, और विवेक से हमें ये सुग्रीव प्राप्त करना है, राइट? Yes. सॉरी, आई थिंक आई हैव आंसर्ड यू Perfectly, you brought that awareness to me कि Ram selected Sugriv because Hanuman and Ram were connected. So this was bound to happen. So if in our life we have to, हमको कुछ करना है, हमारा पॉजिटिव इंटेंशंस लोगों को हमारे लाइफ में खींच के आएंगे, एंड सेकेंड थिंग इज डिफिकल्टीज लाएंगे, तो हमको वो हमारा स्वयं शक्ति को इंक्रीज करता है, मीन्स करेगा। हम आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। वो हमको वो कॉन्फिडेंस देता है। थैंक यू सो मच। और जिसके पास आत्मविश्वास है उसको कभी स्ट्रेस नहीं हो सकता। आत्मविश्वास, मैंने बोला ना, अयम तू परमो धर्म यद योगिन आत्मदर्शनम। अगर आत्मा आपका परसीव हो गया प्रॉपर और ओमनिशियंस आपका आ गया, तो आपका स्ट्रेस बिल्कुल चला जाएगा। नो स्ट्रेस, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? Yes, Sheetal. हेलो सर। हेलो सर, मुझे पूछना था, जो आपने टेक्निक बताई थी, मेरे भी जैसे राइट नी में पेन हो रहा था उस टाइम पे, मे बी बिकॉज मैंने काफ़ी देर अपने लेग्स फोल्ड करके बैठे, और वो ब्रीदिंग टेक्निक से जैसे आपने बताया कि प्राणा लेके जाने के लिए, और ये तो अगर किसी को वीजिंग का इशू हो रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, 3-4 महीने से, तो उनके साथ ये सेम टेक्निक यूज हो सकती है? यस यस, हनुमान जी इज ऑलवेज देयर। हनुमान जी को आप कहीं भी ले जाओ, वो हमेशा काम करके ही आएंगे। अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हनुमान जी कभी फेल हुए हैं, राइट? नहीं सर, यस हनुमान जी करेक्ट। कभी फेल नहीं हुए हैं, और हनुमान जी कभी फेल होंगे भी नहीं। बस खाली आपको उनको भेजना है, बस पहुंचा दो वहां पर, प्राणों को पहुंचा दो, अपने आप ही हीलिंग हो जाएगा। और देखिए, इसको है ना, हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि आपने बताया कि वीजिंग है या कुछ भी है, तो हनुमान जी तो एक्चुअली प्राण शक्ति जो है वो तो लंग्स से ही हमें प्राप्त होती है, करेक्ट। और हमारे हृदय के पास ही हनुमान जी बैठे हैं। तो प्राण शक्ति हमारे हृदय के पास ही है। तो हाँ हमें जी।
उसको जागृत करना है, तो हमें प्राणों के ऊपर ध्यान ले जाकर उसको जागृत करके वहां पर भेजना है। और ये पेन जो है ना, वो तो ओमनी प्रेजेंट है। करेक्ट। तो ये इसको हमें इसको प्राण शक्ति के द्वारा ही इसको दूर करना है, राइट। ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो है जीवन में, बहुत आते रहेंगे, लेकिन जब तक आपके प्राण शक्ति आपके साथ है, आप उसको प्राण शक्ति को भेजेंगे वहां पर, तो ठीक हो जाएंगे। सो ये बोलने की बात नहीं है कि हनुमान जी को राम जी ने भेजा, वो लंका का दहन करके आ गए, सॉरी। तो वो लंका का दहन करके आ गए कैसे? लंका का दहन क्या किया, मतलब वहां पेन को इरेडिकेट कर दिया, आपके पेन को साफ कर दिया, हाँ जी। है ना। तो हाँ जी। आपका कफ जो है वो ब्रोंकस में फंसा हुआ है और वीजिंग हो रहा है, तो हनुमान जी उसको साफ कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। राइट। सो ठीक है। एक्टिवेट योर प्राण शक्ति, हाँ जी। तो वो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। Yes, Lakshmi, you can unmute and speak. न, नमस्ते। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। मेरा भी एक प्रश्न है। ऐसा है कि कई बार दो रास्ते दिखते हैं और हमारा इंट्यूशन भी बताता है कि आप अ, एक टुवर्ड्स वन रोड, एक रास्ते की ओर इंट्यूशन बताता है कि ये सही होगा, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी कभार हम दूसरे रास्ते में, ये योगा करके कैसे वो इंट्यूटिव पावर्स को और ज्यादा हम बढ़ाएं? यस, बहुत ही रूटेड क्वेश्चन है, राइट। वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, ये हमारा जो चॉइस है ना, वो वृत्ति पे डिपेंड करता है। हमारी पैटर्न, हमारी टेंडेंसी क्या होती है, वो वृत्ति बताती है। तो जो है क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकती है। सो हमें या तो अप रेगुलेशन में ले जा सकती है या तो डाउन रेगुलेशन में, पर दोनों ही वृत्तियों को हमें कंट्रोल करना है, हमें कोई पैटर्न में नहीं फंसना है। देखिए, चॉइस तभी आएगी, राइट चॉइस तभी आएगी जब हम लोभ के द्वारा भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना रखें, राइट। उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर भी ना उसको प्राप्त करने की इच्छा ना रखें। जैसे हम लोभ करते हैं तो जो दूत दूत जो कौन होते हैं, वो हमें 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 लूट ले जाते हैं, पैसे लूट ले जाते हैं, क्योंकि हम लोभी हैं, राइट। सो वृत्ति जो है वो हमारे अंदर ये विवेक को डिस्टॉर्ट कर देती है। तो वृत्ति ही हमारे जीवन में ये अवरोध पैदा करती है। तो हमारी पैटर्न को चेंज करना है। हमारी पैटर्न बन गई है, हम बहुत सारी चीजें पैटर्न में आ गई है, जैसे खाना तो मुझे मिल ही जाएगा, मुझे क्यों एफर्ट करना है, राइट। सो मेरी वृत्ति ऐसी होगी, खाना मिल ही जाएगा। तो जब खाना नहीं मिलता तो कितना दुख होता है, जबकि सब प्राणियों को पता है कि आज मिलेगा भी नहीं कि नहीं मिलेगा पता नहीं, तो वो लोग शांति से जीते हैं। लेकिन हमारी वृत्ति हमें पैटर्न में ले जाती है कि हमें आई हैव टू हैव दिस। तो अच्छी वृत्तियां भी हमें बाउंड करती है। सो ना तो अच्छी वृत्ति रखो ना तो बुरी वृत्ति रखो, क्लिष्टा अक्लिष्टा दोनों वृत्तियों को शांत करो, राइट। अगर आपको आप पैटर्न में नहीं फंसे हो तो आप प्रेजेंट में जी रहे हो। अगर आप पैटर्न में फंसोगे तो आप या तो पास्ट में जियोगे या फ्यूचर में जियोगे, राइट। तो आपको प्रेजेंट में जीने के लिए योग बोलता है कि अगर प्रेजेंट में जीना है तो पैटर्न में मत फंसो, वृत्तियों को शांत करो। योग चित्त वृत्ति निरोध, उन्होंने नहीं बोला है कि क्लिष्ट चित्त वृत्तियों को अवरोध करो या अक्लिष्ट को करो। उन्होंने बोला सब चित्त वृत्तियों को, नेवर कॉट इनटू एनी पैटर्न, राइट। नेवर गेट कॉट इनटू द पैटर्न्स। पैटर्न्स हमेशा बाउंड करती है आपको। टेंडेंसी, कोई भी देखो, जैसे राम जी को पता था कि रावण की टेंडेंसी है अहंकार, वो नहीं छोड़ेगा, तो लास्ट तक वो उसको टेस्ट करते रहे, उसका अहंकार को सरफेस पे लाते रहे जिससे वो गिल्ट फील करे, राइट। और गिल्ट फील करके ही वो मरे। उससे बहुत गिल्ट फील किया था बाद में, क्योंकि उसके अहंकार को राम जी ने सरफेस पे लाए बारी बारी। तो उसके अहंकार की जो पैटर्न थी उसकी, वो बारी बारी ऊपर आ रही थी, राइट। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन रावण का कैसे हुआ? रावण ने अपना डिस्ट्रक्शन खुद किया, ये पैटर्न में फंसकर।
राइट। तो हम पैटर्न में नहीं फंसेंगे और हम प्रेजेंट में जिएंगे। अभी जो है वही ठीक है, वही प्रेजेंट में है, वही परफेक्ट है, राइट। कल क्या होगा मुझे पता नहीं, और लास्ट में कल मैंने क्या खाया था, क्या पिया था, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मुझे आज भी खाना पड़ेगा, आज भी पीना पड़ेगा, आज भी सोना पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। वो खाना तो निकल भी गया, कल का खाया हुआ तो निकल भी गया, राइट। कुछ भी साथ में नहीं रहता है, फिर भी हम पास्ट को साथ में लेके चलते हैं। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। वी कैरी पास्ट विथ अस, राइट। हमारा पास्ट हमारे साथ साथ पीछे पीछे चलता है, तो ये हमारे स्ट्रेस का कारण है। हमारा फ्यूचर का डर, क्या होगा फ्यूचर, ये स्ट्रेस पैदा करता है। प्रेजेंट कभी स्ट्रेस पैदा नहीं करता है, क्योंकि प्रेजेंट में अगर आपको फाइट और फ्लाइट भी आया तो आपके प्राण आपको मदद करके आपको या तो फ्लाइट दे देंगे, आप भाग जाएंगे, या फिर आप फाइट करके जीत जाएंगे। आई थिंक बहुत सुंदर, थैंक यू, अति उत्तम, अच्छा लगा सर। मेरे लिए एकदम परफेक्ट है ये जो आपने अभी बताया। Yes. फॉरगेट द पास्ट, डोंट थिंक ऑफ द फ्यूचर, लिव इन टुडे। आज इस सांस जो मैं ले रही हूँ उसके लिए भगवान को शुक्रिया करके आगे बढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू। आपके ईश्वर आपके अंदर बैठे हैं, बस उनको Correct. उनके पर ईश्वर परिधान करना है। बस ईश्वर को बोल देना है कि अब तू ही देखे, राइट। Thank you. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? शुक्रिया। Yes, Sunita, you can ask a question. या नमस्ते। बहुत ही दिल से शुक्रिया, बहुत सुंदर ज्ञान दिया आपने हमको और बहुत सरल, समझने लायक, बहुत ही सुंदर था। मुझे एक तो मैंने शुरू में आरती जी ने बताए बुक्स के नाम तभी लिख के नहीं लिए, तो अगर वो बाद में ग्रुप में डालेंगी तो भी चलेगा, बट आई वुड लाइक टू नो और कहाँ से मिल सकती हैं आपकी बुक्स। और दूसरी बात मुझे पूछनी थी कि लो बीपी के लिए हम ऐसे इस तरह से प्राणों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? चले लो वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। जैसे हम हमारा चित्त जो है ना, वो हमारे प्राणों के साथ में मूवमेंट करता है, राइट। जी और जी और प्राण जो है वो हमारे आत्मा की गति, आत्मा के को फॉलो करता है। तो अगर आपने अंदर मेडिटेशन करके, डीप मेडिटेशन करके अगर आप आपके प्राणों को वहां ले गए तो ऑलवेज जाएंगे। तो आपके आत्मा आपको, आपके प्राणों को कहीं मतलब जहां भी भेजना है वहां जाएंगे। तो आप, ओके हाँ, आपको रिलाय ऑन योर ओन आत्मा, जी और किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना है। आपका विवेक अपने आप ही कल्टीवेट हो जाएगा। अगर आपने ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रख के अपने आत्मा को फॉलो किया तो अपने आप ही सब कल्टीवेट हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब तो लो बीपी के लिए आई विल जस्ट कीप दैट इंटेंशन। लो Is बीपी that- इज नथिंग, इट इज अ सिचुएशन। लो बीपी एक ऐसी स्थिति है जहां पर जी आपका बीपी डाउन जाता है। वो भी बॉडी के अंदर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वो उसके जी तहत जाता है। और उसके समय आप ज्यादा लो होने से आप अगर आपने सॉल्ट ले लिया तो भी आप ठीक हो जाओगे। सो इसमें इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप थोड़ा सा सॉल्ट ले लो, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। पर प्राणायाम से परमानेंट अंदर से वो स्थिति कैसे ठीक हो सकती है वो मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे जी मैंने, मेरा बुक है, उसमें मैंने पूरा महर्षि पतंजलि ने जो डिटेल में जो नैनो लेवल टेक्नोलॉजी बताया है वो वहां पर ले जाता हूँ आपको। हमारा जो लाइफ है ना, उसके अंदर एक प्रोग्राम चलता है, जो प्रोग्राम के तहत हमारे शरीर के अंदर सेलुलर मैकेनिज्म चलते हैं, जिससे हमारे टिश्यू और ऑर्गन फंक्शन करते हैं। अब आपके सेल के अंदर एनर्जी मेटाबॉलिज्म कैसे रहेगा वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करते हैं। सो देयर शुड बी अ यूनियन, और क्या सामंजस्य जिसको बोलते हैं, समत्व, बिटवीन योर योर एपिजेनेटिक बिहेवियर एंड योर माइटोकॉन्ड्रिया। तो शक्ति का संचालन प्रॉपर से होना चाहिए। अगर हनुमान जी को अगर अगर राम ने संचालित नहीं किया होता तो लंका लंका के साथ में रावण को भी जला देते, तो राम जी रावण को नहीं मार पाते, जी राइट। उन्होंने रावण को जी नहीं मारा, मार सकते थे, राइट। हम्म
जी तो जी वो चाहते थे कि राम जी ही रावण को मारे। तो शक्ति को भी हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, हमें संचालित करना पड़ेगा। सो हम आपके लो बीपी को सेल्युलर लेवल पर जाकर योग इसको ठीक कर सकता है। अगर आपकी शक्ति का आपके जीनेटिक एक्सप्रेशन के साथ में एक सामंजस्य, एक समत्व हो गया, तब जीन एक्सप्रेशन जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में या फिर उसके रिवर्स में आपके लो बीपी के कंडीशन में आपको नॉर्मल कर देगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो अंदर से आता है। मेटाबॉलिज्म यू कैन नॉट डिसाइड द मेटाबॉलिज्म फ्रॉम आउटसाइड। मैं अगर ये आज सोच लूं मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए तो ऐसे सोचने से नहीं हो जाएगा, जी राइट। मुझे उसके जी लिए मुझे उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा, डीप अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके वो अंदर आत्मसात होगा। जी जी तो आप अगर प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, तो आपका बीपी 100% कंट्रोल आ जाएगा। ओके एंड ओके एंड कभी कभी लो होना जरूरी होता है, नहीं, राइट। मतलब ये बहुत ही तकलीफ वाला लो चल रहा है कि 100 और 60 के नीचे ही रह रहा है, काफी मंथ्स हो गए, तो मतलब फिर कुछ भी करने की एनर्जी नहीं रहती है ऐसे। यू नो वन थिंग, 60 और 100 एक योगी का बीपी होता है। हाँ यू जी। नो यू नो एक योगी का नहीं, बीपी, पर मतलब उसके एक एक नीचे योग रहता है एंड देन आई डोंट हैव एनर्जी टू डू एनीथिंग। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव केवल स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति यदि। अगर आपका बीपी लो है तो आपके पुरुषार्थ भी कम हो जाएंगे और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी और आप लंबा जियोगे, स्वस्थ जियोगे। और योगी का बीपी 60-100 होता है, नहीं, पर 160। उससे कम रहे, मतलब इट इज मेनी टाइम्स 90-60 से 90-50 के करीब रहता है, तो यस देन यस। मतलब तब परेशानी तब होती है ना। सॉल्ट ले लो और अंतर कुंभक कर लो, अंतर कुंभक से वो ठीक हो जाएगा। ओके हम्म। जी जी, थैंक यू ओके, सॉरी। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, Purvi, you can Hello. यस, Um, आई कैन नॉट हियर यू। Purvi, do you have a question? I think internet के कुछ शिफ्ट problem. होता है, पेन शिफ्ट होता रहता है, एंड लाइक लाइफ में अगर अलग अलग सिचुएशंस और जो पैटर्न्स होती है उसको भी क्या प्राणा या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, सी ये पूरा योग साइंस इसी पर टिका हुआ है, इसी आंसर पे टिका हुआ है। और मैंने जो बताया वो भी यही है, क्रक्स, इसका क्रक्स यही है कि आपके हाथ में है। अगर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की स्थिति आप प्राप्त कर लेते हो ध्यान के द्वारा, तो आप इस पे पूरा कंट्रोल प्राप्त कर सकते हो, पूरा आपके हाथ में आ जाएगा, राइट। सो इसमें नो डाउट, देयर इज नो डाउट ऑफ हैविंग इट, द बैलेंस स्टेट, द होम्योस्टेसिस, जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं, जो शारीरिक रूप में भी काम करता है, मानसिक रूप में भी काम कर सकता है। मन भी होम्योस्टेसिस में होना चाहिए, शरीर भी होम्योस्टेसिस में होना चाहिए, हार्मोन भी होम्योस्टेसिस में होने चाहिए। होम्योस्टेसिस, राइट, अपनी मूल स्थिति में, स्टेट ऑफ रिसाइलेंस, रेजिलियंस, जिसका रेजिलियंस बोलते हैं। साइंस ऑफ योगा एंड योगनोसिस, और मेरी तीसरी बुक जो है पतंजलि योग सूत्र, ये तीनों बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। शायद अमेजोन पे 2 ही होगी, तीसरी बुक जो है आउट ऑफ प्रिंट है, साइंस ऑफ योगा, वो पुरानी बुक है, तो 2001 की बुक है। पर ये लेटेस्ट बुक जो है वो आपको अमेजोन किंडल पे मिल जाएगी, जो पतंजलि योग सूत्र की जो है, बिरजू आचार्य बिरजू महाराज पतंजलि योग सूत्र लिखोगे आपको मिल जाएगी, राइट। सर, आई वांटेड टू आस्क दैट इवन वेट कैन, मतलब उसको भी शिफ्ट कर सकते हैं विद प्राणायाम? अपनी आंखें पलक झपकाओ तो, पलक झपकी, हाँ झपकी, हाँ, आपसे आपके विल से हुआ, यस। बस, where there is will there is way.
सी, अगर आप चाहो तो हो जाएगा, नहीं चाहो तो नहीं होगा। संकल्प सिद्धि योग के अंदर बताया है, यू हैव टू डू ए संकल्प। आप कोई भी काम करना है तो संकल्प करके बैठो। आप अगर संकल्प नहीं करोगे, आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, संकल्प नहीं होगा, वीर्य मतलब ताकत नहीं होगी वो उसको एग्जीक्यूट करने की, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको संकल्प करना है, उसकी सिद्धि के लिए लगातार अभ्यास करना है, और उसकी सिद्धियां प्राप्त होने के बावजूद उससे डिटैच हो जाना। बेटा मैं दे रही हूँ ना, फिर ऐसे चिंची मत करो। ओके, गॉट इट? गॉट योर आंसर? Yes, sir. हाँ, so Thank your will is with you. Your Hanumanji will always guide you. you, sir. Yes, anyone else? So I think the questions are over, and we will conclude with few pointers. One, your Ishwar is within. Your Ishwar is omnipotent, totipotent. Your Atma is a miniature of your Ishwar. Atma is also omnipotent, right? And you can help your Atma to perceive the things in a righteous way through Viveka by cultivating the prana. Pranayam is the key, right? In yogic sciences, pranayam is the key. A posture is required to cultivate your prana, right? प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य. सो प्राणायाम करने से आप अपने शरीर के ऊपर, अपने शक्ति के ऊपर अपना पूरा आधिपत्य ला सकते हो, और शक्ति को हीलिंग के लिए प्रयोजित कर सकते हो, शक्ति को डायरेक्ट कर सकते हो कि मुझे अंदर से हील करो, मुझे अंदर से ठीक करो, मुझे अंदर से अच्छा रखो, मुझे अंदर से प्रसन्न रखो, मेरे अंदर शक्ति भरपूर रखो। ये सब चीजें आपको प्राणायाम से मिलेगी। अब प्रत्याहार, धारणा और ध्यान क्यों करना है? क्योंकि वो इम्प्रिंट हो जाए, वो अंदर प्रिंट हो जाए कि फिर से आपको वही स्ट्रेस वाली स्थिति आ गई, वही खराब स्थिति आ गई, तो वो वापस से वो स्ट्रेस ना आ जाए, वापस से वो ना हो, इम्प्रिंट करने के लिए। अदरवाइज प्राणायाम आपको ठीक कर ही देगा, लेकिन उसको डीप इम्प्रिंट करना है आपको चित्त पर, कि चित्त आपको हमेशा अच्छा परसीव कराए, तो उसके लिए आपको प्रत्याहार, धारणा और ध्यान करना ही पड़ेगा। तभी जाके समाधि की स्थिति आएगी, एपिजेनेटिक सिमेट्री आएगी, और तभी आपका प्रोग्राम, लाइफ का प्रोग्राम जो है वो सुचारू रूप से प्रॉपरली चलेगा। ओके, सो एम आई क्लियर? एनीवन? सो होपफुली आई हैव डन माय वर्क। सबको बहुत खूबसूरती से समझ में आ गया है आचार्य जी। मुझे नहीं लगता, अगर आप चैट पढ़िए अपना, तो आपको उसमें नजर आएगा किस तरह से लोग आपके इस बिल्कुल मासूमियत से बताई हुई बातें समझ रहे हैं। तो इनके लिए तो मासूम ही हुआ, क्योंकि अगर जो बात आसानी से समझ आ जाए वो सबसे गहरी बात होती है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू वेरी मच। anybody else has any other question? Otherwise, we can end the session. सो गुरु वंदना से हम एंड करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य पारायण हो, परस्पर प्रेम भाव हो। नारायण नारायण। बहुत बहुत You- बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और मुझे मालूम है कि आज सब बहुत प्रसन्न होकर ही घर जाएंगे।
और काफी कुछ आपसे सीखा है, काफी कुछ आपसे जाना है, और इसी आशा से, इसी आस्था के साथ कि आगे भी इन लोगों में, सब में, हम सब में वो चेष्टा बनी रहे, कोशिश बनी रहे, इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके थैंक यू वेरी मच। Thank you. Jai Gurudev. और for others at 10:30 onwards, 10:30 will be the community rooms available also at 4 o'clock, and then we'll be here again with you at 7 p.m. in the evening. Have a great day. All the best. See you in the afternoon or evening also. Bye bye. Thank you, ma'am, for this beautiful experience. Thank you, Aarti. Thank you, Radical. Thank you, Radical. Thank you, Atman. And thank you to the whole team who has made Yeah, it possible for us correct. to have Thank you, Yes, Radhika. thank you. And I almost didn't join कि क्या होगा, but I was like, oh, thank you, universe, for making me join. all the best. Okay, bye bye. Thank you.